Sandeep sir, you can start, sir. Okay. Good evening, everybody. I am Rotarian Sandeep Kedia, the president of Rotary Club of Mumbai North End. I'm very proud today because we have such distinguished guest with us today. And I'm sure that we all are going to enjoy this evening, hearing his experience, and we all are going to get motivated big time. So I'm very, very happy and excited to hear our guest. Before we hear him, I would like to introduce him in front of all of you. I'm sure that you all know him, but it's time to introduce him. He's none other than Mr. Mayank Gandhi, who's an activist from India, leading the initiative of Global Parley, about which he will share his experience with all of us in a moment. A nation-building mission through rural transformation since 2016. He's the co-author of Up and Down, one of India's best-selling books on the Aam Aadmi Party. From 2011 onwards, he was a member of core committee in the India Against Corruption movement, which shook the entire country. We all know that. And then the national executive member of the Aam Aadmi Party. During his time in AAP, Mayank Gandhiji was responsible for consolidating the party's position in Maharashtra and was also the state observer in Gujarat. In 2015, he resigned from the party's national executive and quit electoral politics. However, his journey of working on a mission of national transformation goes back to his days as a global urban planner with keen interest in urban governance. He was a member of the advisory body of CTBUH Chicago and world's leading resource for architects and urban planners. During his career as an urban planner, he not only served as a master planning advisor in 23 countries like Spain, France, Hong Kong, and the UAE, but also worked on drafting various urban governance laws back home in Maharashtra, including the Maharashtra Right to Information Act 2003 and Nagar Raj Bill. So here, Mr. Mayank Gandhi is there with us. But before I hand over the mic to him, I would just like to say a couple of lines about him. That राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है. सो मयंक गांधी जी, आप बिल्कुल हमारे देश में सूरज की तरह निखर रहे हैं. आप निकले हैं सूरज बन करके और हम सबको आप एक अच्छा राह दिखाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मयंक जी. ओवर टू यू मयंक सर. थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड. एक तो मैं जानना चाहता हूँ कितना समय है, बोलना कितना समय है, क्वेश्चन आंसर कितना समय है? हम तो आपको सुनते रहेंगे मयंक सर, आप जितने समय बोलेंगे, लेकिन आपको जितने समय कंफर्टेबल लगे. 45 मिनट्स इफ दैट इज ओके विथ यू, देन मे बी 45 मिनट्स. ओके. और मैं अंग्रेजी में बोलूं, हिंदी में बोलूं? मिक्स मयंक सर, बोथ इंग्लिश हिंदी. ओके, कोई बात नहीं. हाउएवर यू आर कंफर्टेबल सर. हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि एक मेरी जर्नी के बारे में अगर बोलूंगा तो उसमें सब वीव हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ इकोनॉमी वगैरह के बारे में बोलने के लिए आप लोगों के सामने कैपेबल नहीं हूँ. आप सब बिजनेस में हैं, आप सब इंडस्ट्री चलाते हैं, तो यू नो मोर अबाउट इकोनॉमी देन आई वुड. आई हैव एन आउटसाइडर्स व्यू, यू हैव एन इनसाइडर्स व्यू. पर मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी क्विकली बोल दूंगा. मैं एक अर्बन प्लानर था, 23 कंट्रीज में कंसल्ट करता था, और उसी समय एक इंटरनल जर्नी भी थी कि मेडिटेशन करता था, बहुत कुछ ध्यान वगैरह करता था. और जब विश्व में घूमता था तो तब ये लगता था कि हमारे पास जो ज्ञान है इंडिया के अंदर, उसको हमें विश्व गुरु बनना चाहिए. और ये फीलिंग होती थी, वहां जाते थे लगता था कि हमारे देश को कैसे चेंज किया जाए और इंडिया को कैसे एक ऐसी स्थान पे लेके जाए कि पूरा विश्व उसके पीछे आए. तो ये थॉट प्रोसेस था.
क्योंकि हमारा जो नॉलेज था ये सिर्फ इंडिया में था और कहीं तो है नहीं ये नॉलेज। जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है, जो डेप्थ है, जो साइंस है, जो वैलिडेशन है, जो ज्ञान था इतना सालों का, ये विश्व के लिए अच्छा है और इसको हमें प्रकट करना चाहिए और इसके लिए इंडिया को सक्सेसफुल होना चाहिए और इंडिया की गवर्नेंस मैकेनिज्म पे वर्क करना चाहिए। तो 2003 में मैं अन्ना जी के साथ काम करके राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह ड्राफ्ट किया, जिससे क्योंकि मैं समझ रहा था कि एक डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए उसकी गवर्नेंस सिस्टम को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि गंगोत्री तो वहीं से आती है। तो ये करते हुए पहले काम किया अन्ना जी के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं एक अर्बन आदमी था तो अर्बन लॉस के ऊपर काफी काम किया, जैसे नगर राज बिल कह रहे हैं, ये सब कुछ किया। और फिर उसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए जमीन के ऊपर भी काम करने लगे कि थियोरिटिकल ना हो जाए। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर 2011 में अरविंद मुझे मिला एक कॉन्फ्रेंस में, और तब तक मैं सब छोड़ चुका था पब्लिक लाइफ फॉर सम रीजन। बहुत अंदर झगड़े झमेले, ये इतना इंडियंस इतने ज्यादा पेटी है, बहुत छोटी छोटी चीज में ईगो बीच में आता है कि मैं थोड़ा सा आई गॉट शेकन अप विद दैट, बट एनी विच वे। तो उनके साथ फिर मैं जुड़ गया और फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लीड किया हमने। अन्ना जी को मैंने मिलवाया अरविंद से, और उसके बाद ये मॉर्फ हो गया पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी में था। लेकिन 2015 का चुनाव जिताने के बाद, उसमें मुझे याद है 2015, और श्रेय भी यहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2015 का समय जो था, तब केजरीवाल को भगोड़ा भगोड़ा बोलते थे, आपको याद होगा तो। और ये लग रहा था 5-7 सीट मिलेगी, 10 सीट मिलेगी। और केजरीवाल के पास दिल्ली में 3-4 हजार कार्यकर्ता थे जो घर भी संभालते थे, काम भी संभालते थे। और मैं, एक संजय भाई, श्रेय, हम लोग 16,000 कार्यकर्ता लेके 2.5 महीने तक दिल्ली में जाके कैंपेन किए, और फिर 67 सीट आ गई। लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी बनने लगा, जो देश बदलने का जो सोच के आए थे, उसके बजाय पावर कैसे मिले और पावर कैसे संभाला जाए, ऐसा सोच के तरफ चलने लगे। और मुझे लगा ये तो देश बदलने वाली बात जो हम लोग सोचे थे वो शायद नहीं होगी। तो मैंने और ये भी सोच लिया कि मैं राजकारण के लायक नहीं हूँ। राजकारण बहुत अच्छा होता है, कोई जरूरी नहीं कि राजकारण खराब ही हो, लेकिन मैं उसके लायक नहीं था। यानी ओशो कहते थे कि लाइफ में रिचनेस भी है और पॉवर्टी भी है, तो हमें चूज करना है कि हमारा लाइफ रिचनेस से बनेगा या जो रोज सुबह उठ के झगड़ा करो, लड़ाई करो, वो पॉवर्टी हो। तो मैंने राजकारण छोड़ दिया, और मेरे पैसे भी खत्म हो चुके थे क्योंकि मैंने अपना जॉब 2011 में छोड़ दिया था। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन पे जॉब ले लिया, लेकिन वो कीड़ा था कि देश को कैसे बदला जाए। और गांधी जी कहते थे कि देश जो है वो गांव में रहता है, देश की आत्मा जो है, सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। और मुझे विलेज का कोई अनुभव नहीं था। तभी हमने सुना कि मराठवाड़ा में पानी के चलते बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके हमने पानी देना शुरू किया, और 2016 में जो सूखा था मराठवाड़ा में, तब हमने 1.5 करोड़ लीटर पानी टैंकर के द्वारा दिया। लेकिन वहां जाके ये देखा कि पानी देना यानी ये तो बैंडेज लगाने जैसा है, कैंसर अंदर है, और बहुत गरीबी थी। तो पहली बार मैं गांव गया और मैंने सारी चीज देखी। फिर ये तय किया कि यार पूरा जीवन अभी इसी में लगाना है। मेरे पास एक फ्लैट था, वो फ्लैट बेच दिया, काम धंधा छोड़ दिया, और फुल टाइम मैं इस काम में लग गया। फैमिली का अच्छा सपोर्ट था। तो बच्चों ने, वाइफ ने, सबने बोला तुमको जो अपने म्यूजिक पे डांस करो, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। तो फिर गांव में जाके हमने शुरू किया, और पहले एक 15, ये मुझे कोई सोशल वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, ये पहले मैं समझा दूं। मुझे तो देश बदलने में इंटरेस्ट है, इंडिया को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए इसमें इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, और वहां पे 15 गांव लेके पहले 2016 के साल में हमने पानी का टैंकर दिया। लेकिन इसमें 2 मेरे पास दिक्कत थी। एक दिक्कत ये थी कि मुझे मराठी का शब्द नहीं आता था, और मैं मराठवाड़ा में चले गया था,
जहाँ बिना मराठी काम नहीं चले। और दूसरा ये था कि लगान पिक्चर छोड़ के मैंने कभी गांव नहीं देखा था, मैं कंप्लीट अर्बन आदमी हूँ। तो ये दिक्कत होने के बावजूद भी वहां पे सबके साथ काम करना शुरू किया। और एक कंसल्टेंट था, ये आप ध्यान रखिए, कंसल्टेंट जो होता है ये अपने आप को ऐसा समझता है दैट आई नो एवरीथिंग, और मैं वहां जाके थोड़ा बोलूंगा तो सब चेंज हो जाएगा। तो ये कंसल्टेंट का बहुत बड़ा वहम होता है, और मेरे पास भी वो वहम था, और मुझे लगा मैं भी गांव में जाके थोड़ा सा एडवाइस दूंगा तो पूरा गांव बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। लेकिन वहां जाके मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो कप में चाय भरा था वो चाय फेंकने की आवश्यकता है। there had to be unlearning before any learning could take place। तो एक 15 गांव के अंदर हम लोग काफी डीप वर्क किए, मैं ज्यादा डेटा में नहीं जाऊंगा, बहुत वर्क किया। और 360 डिग्री, क्योंकि मैंने देखा कि गांव जो है ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा है। आप हार्ट के ऊपर काम करोगे तो लीवर खींच लेगा, लीवर पे करोगे तो लंग खींच लेगा। तो अगर आपको रियली गांव को बदलना है इन रियल टर्म्स, अपने आप को खुश करने के लिए काम नहीं करना है, रियल में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको 360 डिग्रीज पे हर एक एक्टिविटी पे काम करना है। यानी आपको पानी के ऊपर काम करना है, आपको लाइवलीहुड के ऊपर काम करना है, आप एजुकेशन के ऊपर करेंगे, आप हेल्थ केयर के ऊपर करेंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज। जो मॉडल तैयार करें जिसको देश भर में जा सके, तो इसके लिए आपको 360 डिग्रीज काम करना पड़ेगा। तो 2017 हमने 360 डिग्रीज काम किया, गांव को हम समझे, वहां के लोगों में कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि शुरुआत में जब हम गए थे गांव में तो उनको ये लगा ये कुछ मूर्ख लोग आए हैं मुंबई से, उसको कितना लूट सकते हैं लूट लो। और पहले के उनके अनुभव भी ऐसे हो सकते हैं, और वो भिखारी जैसे हो गए थे कि क्या लूट सकते हैं, कितना मांग सकते हैं, क्या ले सकते हैं। तो अगर देश को बदलना है, अगर देश ही पूरा गांव में है और गांव के लोग अगर इस तरह का माइंडसेट से है, क्योंकि वहां 3,500 रुपया पर मंथ की फैमिली इनकम थी, और यूथ से बात करते थे किसी ने दूध नहीं चखा था, और उनकी आंख जो थी वो सोललेस थी, उसमें कोई आशा नहीं थी। उनको ये लगा बस इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना ये पहला चैलेंज था कि इनका माइंडसेट कैसे बदला जाए, क्योंकि माइंडसेट नहीं बदलेंगे तो और कुछ तो वो तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो वहीं जाके हमने शुरू कर दिया कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप सब काम करोगे, हम सिर्फ कंधा देने को आए हैं। तो 2017 का जो समय था वो 2017 में 360 डिग्रीज डेवलपमेंट किया और लोगों का कॉन्फिडेंस हमने हासिल किया। और जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% पानी का महत्व होता है, वैसे उस एरिया में तो 70 से भी ज्यादा % पानी का प्रॉब्लम था। तो 2018 में गांव वालों के साथ मिलके उन्होंने काफी इसमें से पैसे का भी सहयोग किया। हम कुछ भी लेके नहीं देते हैं, जैसे और कोई ऑर्गेनाइजेशंस उनको मदद करती है, हम मदद नहीं करते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं। तो 2018 में हमने 70 किलोमीटर नदी बनाई और 162 पॉन्ड्स बनाए, 52 डैम्स बनाए, और सारे ट्रेंचेस वगैरह बहुत कुछ करके 222 करोड़ लीटर पानी हमने स्टोरेज तैयार किया। तो पानी देना ये एंड प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, पानी जो है ये एक एनेबलर है जिससे हम उनकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो वाटर को हमने एक मिड टर्म स्टेप रखा, उसको फाइनल स्टेप नहीं रखा। और जैसे और लोग करते हैं, कहीं जाके कुछ करते हैं, कहीं जाके कुछ करते हैं, हमने इस तरह नहीं किया। हमने एकदम ही प्लान्ड अप्रोच, बहुत फोकस अप्रोच रखा कि कैसे एक ही जगह पे एक ही सही खा किस तरह से काम करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो दैट वाज आवर आइडिया कि देश को बदलने के लिए एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इन अ लार्ज नंबर। तो ये हमने 2018 में किया। और 2018 में एक और चीज की कि हमने 308 फार्म्स थे उसको सेरिकल्चर में ट्रांसफॉर्म किए, मलबरी लगा के वो जो सिल्कवॉर्म बनते हैं वो सिल्कवॉर्म से। तो वहां पे कॉटन और सोया उगाते हैं। तो कॉटन और सोया में रफली 10 से 15 हजार रुपया एकड़ इनकम है, एनुअल इनकम। तो
एवरेज 3 एकड़ उनकी 3 एकड़ उनका क्या बोलते हैं लैंड होल्डिंग है, तो 40-45 हजार रुपया मिलता है, जिसमें से खर्चा वर्चा निकाल के पर एकड़ 10,000 की इनकम थी। तो हमने ये देखा कि सिल्क वर्म करने से 2.5 से 5 लाख रुपए इनकम हो रही है 1 एकड़ की। तो 10,000 वाला 25 गुना से 40 गुना उसकी इनकम बढ़ गई। और फिर वो ऐसा छाती ठोक के चलने लगा, बाइक लेके घूमने लगा। तो पूरी गांव में इंटरेस्ट पड़ गया कि इनका जो मॉडल है ये मॉडल सक्सेसफुल है। तो 2019 में हमने ये तय किया, और 2018 में बहुत बुरा सूखा पड़ा था और वहां पे पीने के पानी के वांदे थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब हम पानी जो भी हमने स्टोरेज का किया है उसका हम लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और हमने ये कहा कि एग्रीकल्चर छोड़ के आप हॉर्टिकल्चर में चले जाइए। और फ्रूट्स के ऊपर हमने जोर दिया और हमने 10 फ्रूट के पेड़ उनको सिलेक्ट करके दिए, आम, सीताफल, नींबू, फिर ड्रमस्टिक, फिर मौसम्बी, ये सारे हमने उसको, पेरू, तो ये सब हमने उनको स्टडी किया। हमने वहां पे टाई अप कर दिया एग्रो इंडस्ट्रीज और एग्रो यूनिवर्सिटीज, केवीके और सारे एग्रोनॉमिस्ट टीम बनाई, क्योंकि हम समझते थे कि इनकी लाइफ बदलनी है तो 3 चीज जरूरी है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। और हर 15 दिन हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने 3 स्टेप प्रोसेस किया। एक तो ये किया कि आप जो क्रॉप लगा रहे हो उसके बजाय आप ये फल के पेड़ लगाओ। दूसरा कि जो आप पारंपरिक ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हो उसके जगह मॉडर्न फार्मिंग करो। तो हमने हर एक का सॉइल टेस्टिंग किया, स्टडीज रखे, फिर इंडिविजुअल फार्मर्स, अरे एक्सपर्ट सारे जाके एक एक फार्म में जाके उनको समझा रहे थे। रोज रात को हम लोग प्रोजेक्टर लेके गांव गांव जाते थे कि कौन सा कैलकुलेशंस दिखाते थे, फल लगाने से कितना फायदा होगा। तो पहला तो हमने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया, दूसरा हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर किया, और तीसरा हमने ये किया कि एक जगह पे इतना ज्यादा क्वांटिटी कर दिया कि अभी मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मार्केट यहाँ पे आने लग गया। तो मैं आपको एक कुछ उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ। मैं ठीक है ना हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश भी कर लूं? अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। इफ यू वांट मी टू शिफ्ट टू इंग्लिश वो भी कर सकते हैं। तो 10 लाख का टारगेट रखा था, लेकिन लास्ट ईयर वी वर एबल टू क्रॉस 11.87 लाख ट्रीज हमने लगाए वहां पे। और हमने ये रूल रखा था कि जो भी ट्रीज लगाना चाहता है वो मिनिमम 4 ट्रेनिंग सेशन उनको करने पड़ते हैं। तो उनको हमने ट्रेन कर दिया 4 बार ट्रेनिंग करके। और फिर पपाया जैसे हमने जनवरी 2019 में लगाए थे, तो ये 8-9 महीने के बाद ये पपाया के ट्रीज आ गए। और जो भी ट्रीज लगा रहे थे उसके बीच में हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर रहे थे, वेजिटेबल्स का, वाटरमेलन का, मस्क मेलन का, जिससे उनकी इनकम बढ़ते रही। तो सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये जो फार्मर्स थे जो जिसने पपाया लगाए थे, उनका फॉर्चुनेटली 8 से 9 लाख रुपए इनकम हो गया। और एनसीआर से, लुधियाना से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आके बहुत अच्छा रेट देके गए, जिससे इनकी इनकम बहुत बढ़ गई। तो ये मॉडल देखा, फिर जहां ड्रमस्टिक लगाया था उसका प्रोडक्शन निकल के 5-6 लाख रुपया कमाने लगे। तो 10,000 रुपया कमाने वाला अगर 5 लाख प्लस कमाने लगा, 50 टाइम्स इनकम हो गई। तो हमें लगा ये मॉडल सक्सेसफुल है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जगह पे। तो अभी बाकी का जो पेड़ है, जो जिसमें आम भी है, अमरूद या पेरू है और कस्टर्ड एप्पल है, ये सब अभी प्रोडक्शन आने लगेगा। उसका मार्केटिंग के लिए हम उनको हेल्प करेंगे। लेकिन ये मॉडल को हमने सोचा कि अभी इसको स्केल अप कैसे करें, क्योंकि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बन गया था कि आप जो एग्रीकल्चर के जगह पे अगर आप हॉर्टिकल्चर की तरफ चलते हैं तो आप इसमें इंक्रीज ऑफ इनकम हो सकता है बाय फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद वहां पे जो मराठवाड़ा जहाँ पे हाईएस्ट सुसाइड्स होते हैं, वहां पे लोग आके हमको कहने लगे हम भी लगाना चाहते हैं।
तो 2020 में हमने सोचा था कि मराठवाड़ा में 3856 विलेजेस में हम ये फल के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये पर्सनली लगता है, आई एम श्योर ये कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूं मैं, आप लोग कोई अग्री नहीं करोगे, पर मुझे ये लग रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर को बहुत ओवररेटेड है। अगर आप लाइवलीहुड बढ़ा दो, जेब में पैसे ज्यादा कर दो, तो बाकी का सब वो मैनेज कर लेते हैं। आपको इनकम बढ़ाना इज द फर्स्ट और मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट शुड बी डन। इसीलिए हमने लाइवलीहुड इंक्रीज करना, इनकम मल्टीप्लाई करना, ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी लगा। तो जब मराठवाड़ा के बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट थे, बीड, लातूर, उस्मानाबाद और परभनी, इसके हमने 3856 विलेजेस सिलेक्ट किए हैं और वहां पे फल के पेड़ लगाने का हमने प्लान किया है। तो 30 लाख फल के पेड़ इस साल लगाने का टारगेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना आने से थोड़ा सा वहाँ का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन है और हमको जो CSR फंड आते थे वो इस बार प्रेशर में है, तो पता नहीं हम 30 लाख लगा पाएंगे कि नहीं। लेकिन कल का फिगर ये था कि 8,50,000 बुकिंग हो चुका है। तो हम लोग फार्मर्स बुक करते हैं, अपना पैसा देते हैं और हम पूरे देश में घूम के बेस्ट जो प्लांट्स हैं वो लेके आते हैं और जब बारिश आती है तब उनको सप्लाई करते हैं जिससे वो लगाए, उसका हैंड होल्डिंग करके उनको ट्रेन करते हैं। तो अभी 55 दिन और है हमारे पास और 30 लाख पहुंचेंगे कि 20 लाख पहुंचेंगे ये हम जान नहीं रहे, बट द अटेम्प्ट इज के मराठवाड़ा के अंदर हम लोग 20 से 20 लाख प्लस पेड़ तो इस साल लगाएंगे जरूर। टफ है सिचुएशन, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम इज मोर देन कैपेबल। हमारे वहाँ पे 103 सेंटर्स है जहाँ पे बुकिंग होता है, हमारी वेबसाइट पे बुकिंग होता है, हमारी 9 ऑफिसेज है, तो पूरा फुल फ्लैश वर्किंग चल रहा है मराठवाड़ा में। और ये होते ही कमलनाथ जी ने बुलाया था कि मध्य प्रदेश में भी ट्राई कीजिए, तो अभी रायसेन डिस्ट्रिक्ट 490 विलेजेस का वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मराठवाड़ा का आपको स्केल का थोड़ा आइडिया दूं तो वहाँ का जो एरिया है अराउंड 32,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, which is larger than 58 countries in the world and which is 1.5 times Israel। तो जो बैंडविड्थ है, जो स्केल है, ये काफी बड़ा हम लोग लिए हुए हैं और अगर हम मध्य प्रदेश को ऐड करें तो और बड़ा हो जाएगा। और हमारे इस तरह से पूरे देश में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हमको हमारे साथ भी काम कीजिए इन अ बिग वे। तो नेक्स्ट ईयर शायद हम लोग और इसको स्केल अप करेंगे। अब देखिए जो मैराथन दौड़ता है ना, लास्ट के 2-3 किलोमीटर फास्ट दौड़ना पड़ता है, तो मेरी लाइफ का भी मैराथन अभी एंड तक आ रहा है, लास्ट के कुछ किलोमीटर बचे हैं, तो अब स्पीड अप करना पड़ेगा, फास्ट काम करना पड़ेगा, नहीं तो देश बदलने नहीं वाला है। और तीसरा जो था, यानी फर्स्ट था कि एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाए, दूसरा था कि इसको स्केल अप करें, रेप्लिकेट करें ये मॉडल को, और तीसरा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ कि इसके पॉलिसी के ऊपर हम कैसे वर्किंग करें, इसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, इसको मॉनिटरिंग कैसे करें, एक टास्क फोर्स कैसे बनाए जिससे जो एग्रीकल्चर लैंड में से कुछ लैंड हॉर्टिकल्चर में चले जाएं। मैं आपको अब 3 एग्जांपल देता हूं कि ये जो काम है, जैसे कबीर जी कहते थे कि एक साधे सब सदे, यानी एक स्टोन से कितने पक्षी मार सकते हैं। तो अगर फल के पेड़ लगाते हैं और किसान के हाथ से लगवाते हैं उनके खेत में, तो मेंटेनेंस अपने ऊपर नहीं है, लेकिन उनकी इनकम बहुत गुना बढ़ जाती है। तो उनकी इनकम बढ़ने से क्या होगा कि फार्म डिस्ट्रेस जो है, जो गरीबी है, जो सुसाइड्स है, जो ड्रॉट है, लास्ट हम लोग हमारे जाने के बाद जो परली में जो एवरेज 40 सुसाइड्स हो रहे थे पर ईयर, लास्ट हमारे जाने के बाद यानी 4-5 साल हो गए, सिर्फ 2 ही सुसाइड हुए हैं। तो वहां पे होप मिलना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम किसान की इनकम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उनकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, उन बच्चों का एजुकेशन चेंज हो जाएगा, हेल्थ चेंज हो जाएगा, उनका पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो सकता है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, फार्मर के लेवल के ऊपर हुआ, लेकिन उसको देश का क्या फायदा होगा। मैं 3 लेवल पे कह रहा हूँ, इंडिविजुअल, कंट्री एंड ग्लोब। तो इंडिया में फार्मिंग अगर बढ़ जाती है तो सोशल अनरेस्ट कम हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। 6.25% लैंड जो है वो हॉर्टिकल्चर में है, आप उसको 15% पे लेके आओ तो आप सोचिए कि इंडिया का जीडीपी कितना बढ़ जाएगा और फार्मिंग का पूरा एलाइड इंडस्ट्री वगैरह कितना हो जाएगा।
सॉरी, तो ये फार्मिंग एग्रीकल्चर का लाइफ बेटर हो जाएगा। फिर फ्रूट्स लगवा रहे हो तो 20, 30, 40, 50 विलेज के बीच में आप छोटे छोटे पैक हाउस डाल सकते हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स डाल सकते हो, कोल्ड स्टोरेजेस आ जाएंगे, गोडाउन आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री को भी आप स्मॉल MSME को भी आप एकदम बढ़ावा दे दोगे इन द रूरल सेक्टर। फिर सर्विस इंडस्ट्री आ जाएगी, छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ जाएंगे, और अगर ये आप इनफ प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट करें तो फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकता है। तो इन अ वे कंट्री के जितने भी एस्पेक्ट्स है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसको ये पेड़ लगाने से, खाली ये सिंगल पॉइंट से पूरा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस विश्व को है वो है क्लाइमेट क्राइसिस, मीनिंग दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। हम लोग बाकी सब चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ग्लोब विच वी आर फेसिंग, यानी आप ये समझिए कि नीति आयोग ये कह रही है कि 2020 में 21 सिटीज को पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतने लेवल पे है कि डायनासोर्स के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पहुंचा था और एक पूरा खत्म हो चुकी थी एक योनि, वैसे उसकी तरफ जा रहे हैं। लास्ट 50 साल में हम 60% योनि खत्म कर चुके हैं, और इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ये कह रहा है कि 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है बाय 2030। तो ये तो ऐसा नहीं है कि 2029 तक सब नॉर्मल रहेगा और 2030 में, अभी से शुरू हो जाएगा, और वो हो भी रहा है। आप देख रहे हो कि क्लाइमेट का जो प्रभाव है ये विश्व के ऊपर कितनी बुरी तरह पड़ रहा है। अगर आप, और मुझे ये लग रहा है कि द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस इज मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। आप अगर मास प्लांटेशन करोगे तो उससे ग्रीनरी बढ़ेगी, उससे ऑक्सीजन बढ़ेगा, उससे बारिश ज्यादा आएगी, उससे टॉप सॉइल को पकड़ लेंगे, उसका रूट्स नीचे तक पानी पहुंचा देगा, उसके पत्ते गिरने से बायोमास बढ़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रूट लगने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सबको कुछ ना कुछ खुराक मिलता है। तो मुझे ये लग रहा है कि वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, स्वीट स्पॉट पे बॉल लगना तो फोर जाती है। ये स्वीट स्पॉट मिल गया है कि देश को बदलना है, विश्व को बदलना है, तो फल के पेड़ लगाओ, फार्मर के पास लगाओ, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो, देश बेटर हो और विश्व बेटर हो सके। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपको संक्षिप्त में मैं बता दूं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, बहुत हमारी बड़ी टीम है, 45 पीपल की टीम है, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। रोटरी क्लब है तो मैं 1-2 बात बता दूं। ये लास्ट ईयर ग्लोबल ग्रांट हमको 1 करोड़ 6 लाख रुपीस की मिली है, और रोटरी क्लब हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस। लेकिन उसके साथ में एक मजाक जोक भी बोल देता हूँ लाइट में, कि रोटरी क्लब से बात करते हैं, रोटरी कहती है हम मदद करना चाहते हैं, तो फिर पूछते हैं ये कितना दूर है, तो हम कहते हैं 530 किलोमीटर दूर है। तब वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई जगह बताइए ना जहाँ पे हम सुबह जाके शाम को वापस आ सके। तो मैं उनको कहता हूँ कि एक जोक बोलता हूँ कि एक आदमी था, वो 2000 का नोट रात को लैंप के नीचे ढूंढ रहा था, तो पूछा कि क्या गिरा है, क्या ढूंढ रहे हो? बोला पैसा गिरा है। बोला कहाँ गिरा है? बोला गिरा तो अंधेरे में है, लेकिन यहाँ लाइट है करके ढूंढ रहा हूँ। तो वैसी गरीबी जो है, जो रियल प्रॉब्लम है, वो वहां है 530 किलोमीटर दूर। जब मैंने भी सोचा कि देश को बदलना है, तो मैंने भी एक लॉजिक लगाया कि वर्स्ट एरिया, हाईएस्ट सुसाइड इंडिया का कहाँ होता है? तो मराठवाड़ा। मराठवाड़ा का वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो बीड। बीड का कौन सा तालुका है जहाँ हाईएस्ट सुसाइड होते हैं? तो परली। इंडिया का एवरेज इरिगेटेड एरिया 40% है, तो परली का 1.72% है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मदद करनी है, मॉडल तैयार करना है, तो यू शुड डू वेयर द सिचुएशन इज द वर्स्ट, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हमने परली सिलेक्ट किया, और अभी हम एक्सपांड करके वैसे सारे एरिया में जा रहे हैं मराठवाड़ा के जहाँ हाईएस्ट सुसाइड है। तो अभी 2016 से शुरू करके ये हमारी जर्नी, ये अभी तक आगे की क्या जर्नी है वो ऊपर वाला तय करेगा, बट देश को बदलना है ये ठान लिया है। अब जाते जाते जितना कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शांति से आपने। मयंक भाई कुछ सवाल मेरे पास मैसेजेस पे भी आ रहे हैं। किसी ने बोला भाई मयंक भाई ने बिना पैसे के एक टीम खड़ी करी, इतने ऑफिसेस खड़े किए,
तो वो जरूर मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो सबसे अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि काफी लोगों का मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास है, तो सबके पास CSR फंड्स हैं, तो CSR फंड को मैंने एक्चुअली, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे UPL कंपनी है, एल्केम लेबोरेटरी है, शाहपुर जी पालन जी है, तो ये सब ने मुझे फंड दिया, तो उनका मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है। मीनिंग वो ब्लैंक चेक वाले लोग हैं, आप मयंक भाई आप बोलो कितना देना है क्या देना है, तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू फाइंड। मैंने भी ऐसा टिपिकली जा जाके CSR को पिच देना और पैसा इकट्ठा ऐसा कभी किया नहीं। मुझे अभी भी याद है जब नदी का काम कर रहे थे मुझे 5.5 करोड़ रुपए लगते थे, और मैंने 4 या 5 फोन किए और दोपहर तक मेरे को 5.5 करोड़ रुपए आ गए। तो ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, कुछ मित्र हैं, और मैंने कहा वैसे रोटरी ने इस बार काफी मदद की। रोटरी पवई ने 33 लाख रुपीस दिए, और ग्लोबल रोटरी क्वींस नेकलेस ने 1 करोड़ 6 लाख रुपीस दिए। तो यहीं से पैसे आ रहे हैं, मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं, लेकिन मैं कोई पैसा लेता नहीं हूँ इसमें से। मैं कहीं कंसल्टेंसी करता हूँ जहां से मेरा घर चलता है और मेरे फैमिली इज लुकिंग आफ्टर मी। मयंक भाई दूसरा सवाल, मतलब मुझे जो समझ में आया कि अपनी नीयत अच्छी है, अगर हम सेल्फलेस हैं तो शायद पैसों की कहीं कमी नहीं आती है। दूसरा सवाल जो देश के अंदर कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना, पैसे की तकलीफ नहीं आ सकती, ये देश बहुत महान है। जी 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 मयंक भाई, दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप जो बता रहे थे उसमें ट्रेनिंग, एक चीज मुझे समझ में आई, कंसंट्रेशन, मॉडल एंड होमवर्क। अगर ये आप जो बताए 3 ट्रेन, तो मैं ये समझता हूँ ट्रेनिंग, कंसंट्रेशन, मॉडल एंड होमवर्क, ये हमें सबको सीखना चाहिए, और शायद अगर हम अपने बिजनेसेस में लगाएं तो शायद यही जो 4 चीजें हैं ये हमें काम आएंगी। इसके बारे में अगर आप कुछ और एनलाइटमेंट दें तो अच्छा रहेगा। नहीं देखिए, वो फार्मर्स जो हम लोग सोचते हैं ना, फार्मर को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, ये बहुत गलत है। फार्मर्स बहुत वाइज हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो जबरदस्त ग्रिप है, और उनको एक्चुअली गाइडेंस की थोड़ी सी जरूरत है। गाइडेंस भी राइट वर्ड नहीं है, पर उनको सारा समझ है, पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको इश्यूज नहीं है। वहां जाके आप हाथ पकड़ के बोलिए ना, चलिए ना करते हैं, एक तो उनका पहले तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई है गरीबी के कारण, लेकिन 1-1.5-2 साल उनका माइंडसेट चेंज करने में लग गया, और वो सबसे क्रूशियल था। वो माइंडसेट तभी चेंज कर सकते हो जब आप वहां जाके रहो। ये बहुत आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, पर पीयूष गोयल जी के पास उनका कोई इस तरह से एक सेगी करके एक स्कीम होता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो उनके पास 5-5 गांव के 2 सेट थे। तो मुझे कहा तुम जाके देख के आओ कि वो ठीक है कि नहीं हम लोग जो कर रहे हैं। तो वहां जाके मैंने देखा खूब पैसे आ रहे हैं, और जिस प्रकार से वो चैरिटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स इन दैट विलेज देन सॉल्यूशन। क्योंकि फिर अंदर अंदर लड़ाई हो गई, उसको चले जाता है, मेरे को नहीं चलता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट गया, मेरे को नहीं गया। तो फिर मैंने सेगी को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि एवरी एमपी हैज टू हैव सम काइंड ऑफ विलेज दे हैव टू हैव। और जहां जहां सेगी हुआ वहां जो पहले परसेंटेज ऑफ वोट मिलते थे उससे अभी कम मिलने लग गए। तो इस तरह से बाहर से जाके काम करना गांव में, जैसे मैं आपको और थोड़ा लाइटली 2 चीज कहता हूँ कि 2 मिथ है हमारी लाइफ में। एक मिथ ये है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, तो मैंने भी देख लिया बच्चे भी वैसे ही होते हैं जो बड़े होके होने वाले हैं, वही सेल्फिश होते हैं, वही चीज होती है। और दूसरा ये है कि किसान जो होता है बड़े नाइव और भोले होते हैं, ये गलती कभी ना करे। किसान भी उतने चालू होते हैं, और जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटी में हम 4 लोग साथ में काम नहीं कर सकते, वैसे किसान 3 लोग साथ में बैठ के काम नहीं कर सकते। यानी हमारा तो अभी का झगड़ा है, किसान का तो तेरे पिताजी, तेरे दादा। तो ऐसे में उनको सारे को साथ लेके काम करना, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उसमें सॉल्यूशन देना, ये बहुत जरूरी है। और ये बाहर से जाके हम लोग पैसे देके जो करते हैं या हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इससे रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये हमको डेफिनेटली खुश हो रहे हैं कि हमने जाके वहां पे कुछ पैसे डोनेट किए, वहां स्कूल में हमने कंप्यूटर लगा दिया,
लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको वहां के प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा इन इट्स एंटायरिटी। यानी हम लोग शुरुआत में जब गांव में गए तो हमने कहा कि अगर आपने बीजेपी या राष्ट्रवादी या कांग्रेस ऐसा शब्द भी बोला तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। और ऐसा कुछ गांव में हुआ कि उन्होंने कहा देखो राष्ट्रवादी ने हमको मैसेज नहीं भेजा, बीजेपी ने नहीं भेजा, हम उठ के निकल गए वहां से। और ऐसा भी नहीं कि एक गांव के अंदर एक बीजेपी है, एक राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एक शिवसेना है। बीजेपी के भी 4 पार्ट होते हैं। यानी रूरल इंडिया इज कंप्लीटली फुल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द वर्स्ट काइंड। और बीड इज फेमस फॉर इट्स क्रिमिनलिटी। वहां तो तलवार बंदूक सब कुछ चल रहा है। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी सिलेक्टेड दैट एरिया। ये एरिया को अगर ठीक कर सकते हैं तो देश ठीक हो सकता है। मयंक भाई, जो आपकी बात सुन रहे हैं उससे तो हमें बहुत आशा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक छोटे से हिस्से को, जिसमें क्रिमिनलिटी भी बहुत थी, जिसमें गरीबी भी बहुत थी, जिसमें कोई आशा नहीं थी, तो जिंदगी में आज हम कोरोना फेस कर रहे हैं तो बहुत जगह आशाएं टूट रही हैं। तो ऐसे में मतलब अगर आप जो मॉडल बता रहे हैं शायद ये एक टाइप का मॉडल हो। ऐसे व्यापार में कई तरह के मॉडल होंगे। जब आप बता रहे हो कि किसान को अगर हम फल बनाने देंगे तो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री, पैकेजिंग, संदीप स्माइलिंग, संदीप पैकेजिंग इंडस्ट्री भी आएगा आगे, एंड कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है। तो ये हम जब कर सकते हैं सबके सब, तो शायद हो सकता है दुनिया में हम एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ जा सकते हैं। जी, मैं शुरुआत में मैं कह रहा था वैसे लोगों को होप्स नहीं थे और लोगों को चेंज करना ये इम्पोर्टेंट था। उनकी इनकम बढ़ानी तो थी, लेकिन अगर लोग चेंज हो जाएंगे तो इनकम अपने आप बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसके ऊपर हमने बहुत वर्क किया। थोड़ा सा अगर 5 मिनट का समय दे तो मैं आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता हूँ। बिल्कुल सर, श्योर श्योर। एक आपको एक कहानी कहता हूँ मैं। हमारे यहाँ एक डैम, एक नदी है पापनाशी नदी, और उसके ऊपर एक बड़ा डैम था, उसको कोल्हापुर टाइप डैम कहते हैं, और वो टूटा हुआ था। तो हमने कलेक्टर को जाके रिक्वेस्ट किया। अच्छा, मैंने ये बोलना मैं भूल गया कि एवरी 15-20 डेज हम लोग कलेक्टर के साथ मीटिंग करते हैं और डिविजनल कमिश्नर जो मराठवाड़ा का है उसके साथ मीटिंग करते हैं। सारे ऑफिसर को बिठाते हैं और पूरा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अगर वो काम नहीं करता तो उसके ऊपर शो कॉज नोटिस मैं करवाता हूँ, उसको डिसमिस करवाता हूँ। लाइक अ मिनिस्टर मैं वहां जाके बैठ के सारा काम करवाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑल्टरनेट मशीनरी बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट मशीनरी के पास पैसे हैं, मैन पावर है, स्कीम्स है, सब कुछ है। हमको तो सिर्फ ऑयलिंग करना है और डंडा मारना है। सारे हमारे ही पैसे है और किसका पैसा है। तो मैं सरकार के साथ बहुत काम करता हूँ, उनसे बहुत काम करवाता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा था, जैसे और एक स्टोरी मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ वापस, कि अगर बीड का कलेक्टर आता है, उसके अंडर 1405 गांव है, तो वो आके उसका पहला काम ये है कि मेरे को यहाँ से कैसे ट्रांसफर हो, क्योंकि ये पनिशमेंट पोस्टिंग है और 1405 गांव है, वो 1.5-2 साल टिकता है, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है। और इतना काम होता है, इसको आना उसको आना, वहां का पॉलिटिशियन प्रेशर मारता है वहां पर, और ऊपर डिविजनल कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, वो कहीं बाहर जा नहीं सकता, इतना सीरियस हार्ड वर्किंग होता है। तो कोई कलेक्टर कोई गांव में कभी गया ही नहीं है, और मैंने वहां जाके ऐसा माहौल फैला दिया कि 7 बार कलेक्टर आ चुका है हमारे गांव में। और एक बार तो पेड़ के नीचे बैठ के उसने सारे ऑफिसर को बिठा के वहीं पे सारी फाइल साइन करके दे दिया। कलेक्टर भी अच्छे थे, लेकिन उनको प्रेशर है। अब उन्होंने एक डेप्यूटी कलेक्टर रखा हुआ है सिर्फ हमारे 15 गांव के लिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलवाना, काम चलाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टोरी मैं आपको बोलता था। वो जो ब्रिज रिपेयर करे, वो डैम रिपेयर करना था, तो लंबी नहीं कहूंगा, तो कलेक्टर के पास हमने कह के एक उसका मीटिंग करवाई। बाकी 8-10 लोग आए थे, सबने साइन किया। फिर वहां से वो जिला परिषद में गया, अंबा जोगाई 120 किलोमीटर अवे। वहां के जिला परिषद के लोगों ने साइन किया, उन्होंने पूरा मेमोरेंडम बनाया, 14 लोगों ने साइन किया, फिर एक दूसरे को हैंड ओवर किया। फिर ये गया गिरीश महाजन के पास मंत्रालय में, फिर उनको सीएम ने बुलाया तो साइन नहीं कर पाए। फिर 3 महीने के बाद और मीटिंग हुई, उसके बाद ये परली गया वहां से। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट टुक 173 signatures across 5 cities to get one dam repaired.
आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल आदमी का इस देश में क्या काम है। तो इतना कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, इसमें काम कैसे करे ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें से काम कराना हो तो वहीं जाके, जैसे हमने वो मैंने आपको कहा था वो सिल्क का जो काम किया था, वहां के क्लर्क ऑफिसर इतने व्यस्त थे या भ्रष्ट थे जो भी कहे, कि मैंने 2 आदमी एम्प्लॉय करके गवर्नमेंट क्लर्क बना दिए और उससे पूरा काम करके फिर वो निकल गए वहां से। यानी कैसे भी काम करना है, उसके लिए जो जरूरी है वो सब करना है, क्योंकि वो मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मोड पे काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा पागलपन भी है हमारे अंदर, हम लोग येड़ा बोलते हैं ना, वैसा ही येड़ापन है थोड़ा। तो ये टफ है, ये इजी नहीं है। बाहर से आके हम थोड़ा डोनेट करके थोड़ा बहुत करके अपने आप को खुश करके घर जा सकते हैं, लेकिन आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो एक अलग ही तरीके से काम करना पड़ेगा। मयंक भाई, आपकी बात सुन के समझ में आया कि सिर्फ बाहर से हम बोल देते हैं हम 50,000 दे दिए, लाख रुपया दे दिए, दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। अगर हमें सच में करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां हम किसी तरीके से पहुंचे, अंदर सिस्टम में पहुंचे, सिस्टम में पहुंच के सिस्टम जो है, पैसे हैं, सब कुछ है, उसको ऑर्गेनाइज करें। और ऑर्गेनाइज करने के बाद में मतलब हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अब रोटरी का जो मिशन था कि भाई सिर्फ पैसे डाल रहे हैं, तो या तो हमें एक मयंक भाई पकड़ना पड़ेगा जिनके पास हम अपना फंड्स भेजें कि भाई एक प्रोजेक्ट कीजिए, या हमें खुद मतलब वॉलंटियर करना पड़ेगा, और कई मयंक गांधी खड़े करने पड़ेंगे या उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको मेरे से मत रिलेट किए, मैं पूरा एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वही जैसे मैं आपको प्रोसेस कहता हूँ, हाँ जी, हाँ, मैं प्रोसेस का नाम मयंक गांधी रख दिया हूँ। ठीक है, मैं एक दो स्टोरीज कहता हूँ। जी सर। शुरुआत में मैं गया था, एक रेवली करके गांव था। तो रेवली गांव में वहां मीटिंग कैसे होती है कि मंदिर के परिसर में मीटिंग होती है। तो मैं कुछ बोल रहा था वहां पे, तो somebody was speaking above me, जरा जोर जोर से बोल रहा था और मैं इरिटेट हो गया और मैंने कहा यार दारू पी के एटलीस्ट मंदिर में तो मत आया कीजिए। मीटिंग पूरी होने के बाद मुझे लगा ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो किसका भाई होगा, किसका चाचा होगा, उसको ऐसे पब्लिक में ह्यूमिलेट करना कितना ठीक है। लेकिन वो सरपंच ने बड़ा सीरियसली ले लिया। वो 2-3 जन गए वहां पे, और जहां दारू की दुकान, वो कौन सा वो हूच बनाते हैं ना, इलिसिट लिकर, तो वहां पे उनको कहा कि तुम्हारे अभी इस गांव के अंदर अभी 7 लोग मर गए सिरोसिस ऑफ लिवर से। शाम को सब लोग रोड के ऊपर दारू पी के पड़े होते हैं, लेडीज ने पीना शुरू कर दिया था, 10 साल के बच्चे पीने लगे थे, तो आप दारू बेचना बंद क्यों नहीं कर देते। अब पता नहीं क्या हुआ, संध्या काल का समय था, वो आदमी ने कहा मेरे पास 7 दिन का स्टॉक है, मुझे इसको निकाल लेने दीजिए, उसके बाद मैं दारू बेचना बंद कर देता हूँ। सरपंच का रात को मुझे फोन आया, मैं वहीं रहता था परली में ही, ये गांव में था अबाउट 20 किलोमीटर अवे। तो उन्होंने मेरे को ये बात कही, तो मैं बोला चलो अभी एक मुझे ओपनिंग मिल गया। तो दूसरे दिन सुबह मैं गया और मैंने उस आदमी का पैर पकड़ लिया और मैंने कहा तुमच्यामध्ये देव आलेला है, आपके अंदर भगवान आया है, अभी क्या करोगे, अभी तुम घर कैसे चलाओगे दारू बंद करके। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको 3 प्रेग्नेंट बकरी देता हूं, उससे आप बकरी पालन कीजिए। 7 दिन के बाद उसने दारू बंद कर दिया और मैंने उसको 3 बकरी दे दी। लेकिन वो करते हुए मुझे लगा कि ये तो यार एक लॉटरी लग गई है। मैंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कह के कुछ हवालदार ले लिए और गांव गांव में जाके रेड मारना शुरू कर दिया दारू की दुकान में, और साथ में मशाल लेके रात को बच्चे निकलते थे हम लोग सब, दारू बंदी झालीच पाहिजे, दारू बंदी झालीच पाहिजे। और दारू की दुकान के बाहर लेडीज बैठ के मंजीरा बजाने लगी, रामधुन करने लगी, और एक तरीके से पुलिस ने रेड मारी, सब भाग जाते थे। मैं उनकी, और उस समय ना मैं टीवी पे बहुत आता था, तो वहां के गांव वाले समझते थे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, तो मैंने भी उसका एडवांटेज लिया और मैं सबका पैर पकड़ के बोलता था कि मेरे को आप दारू बंद कर दीजिए, मैं आपको 3 बकरी देता हूँ। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि सारे 15 गांव जहां मैं शुरुआत में काम करता था वहां दारू बंद हो गया। ऐसा नहीं कि पीना बंद हो गया, कुछ लोग और कहीं जाके थोड़ा बहुत पी के आते थे, लेकिन दारू पीना बहुत रिड्यूस हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात ये हो गया कि जो गांव की जो लेडीज थी ना, वो हमारे साथ सब जुड़ गई। तो अभी आंदोलन हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि
इस देश के अंदर आंदोलन बहुत हुए हैं। गांधी जी का आंदोलन देख लें, इमरजेंसी का आंदोलन देख लें, उसके बाद मंदिर का, मंडल का, अन्ना का, तो आंदोलन सक्सेसफुल बहुत हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि हेजीमनी जो है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, उसकी जगह और किसके हाथ में चले जाता है। तो क्योंकि ये वेल प्लान नहीं है, तो आपके पास बिल्डिंग तोड़ने का तो मटेरियल है कि जाके उसको तोड़ के आओ, लेकिन नया बिल्डिंग का प्लान नहीं है कि नया देश कैसे बनेगा। इसलिए देश में बड़ा फर्क नहीं आया है। लास्ट वाला भी आंदोलन जो अन्ना वाला हुआ, उसमें भी यही हुआ कि यू हैव रिप्लेस्ड अनदर विद योरसेल्फ, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, पर बदलाव नहीं आया है। तो पहली बार हम कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट करें, जहां लोगों की इनकम बढ़ाएं, लोगों को पॉजिटिव करें। तो इसको लड़के झगड़ के गाली दे के मोर्चे लेके देश बदलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बदलेगा तो यानी एक जन के जगह रिप्लेस करके और कोई आएगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस करने हैं तो ये मूवमेंट होगा, और कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट होना जरूरी है। मयंक भाई, सब लोग सुनना चाहते हैं, आपका क्या एडवाइस है आज जो सबके सब मतलब एक तो डरे हुए हैं, कितना भी मैं भी बोल लूं कि भाई हाँ नहीं हाँ बिजी है वो है, सबके मन में एक इकोनॉमी के प्रति निराशा या जो भी आप बोल रहे डाउन। तो जब आपने गांव में एक जोत जगाई, आशा जगाई, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आज एक आशा किरण जगे हमारे में, जो देख रहे हैं, और जो शायद हम जब रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो जो देखेंगे वो उसमें वकील भी हैं, व्यापारी भी हैं, आम आदमी भी सब है। मेरा अच्छा नहीं लगेगा बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। मैं तो बोलने में तो आपको पता है सिद्धार्थ, मैं बड़ा कैंडिडेट स्पीकर हूँ। मैं एक अर्बन आदमी था और मैंने कभी गांव देखा नहीं था। और आपको शायद याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के समय पे अगर कोई मुझे परेशान करना चाहता तो बोलता है आप गांव में जाके अहमदनगर जाओ, औरंगाबाद जाओ, और मैं अपने कंफर्ट लेवल के बाहर नहीं आना चाहता था। कहीं भी रूरल मुंबई छोड़ के कहीं भी ऐसा लगता नहीं था मैं कहीं जाके काम करूं। अभी मैं पूरी लाइफ मैंने डिवोट कर दी ऐसे गांव में जहां का मैं कुछ समझता नहीं हूँ, जिसका लैंग्वेज मुझे नहीं पता है। तो ये मेरा स्क्रिप्ट नहीं हो सकता है ना, ये तो ऊपर वाले का स्क्रिप्ट है जिसको जो मुझे इस तरह भेज रहा है। तो ये भी किसी का स्क्रिप्ट है। ये जो कोविड है, जो मेरे जैसा सरेंडर्ड आदमी है, मैं तो ऊपर वाले से सरेंडर्ड हूँ। सब लोग इस तरह सरेंडर्ड नहीं होते हैं, बड़े लॉजिकल रैशनल होते हैं, पर मैं तो इलॉजिकल इरैशनल आदमी हूँ। तो ऊपर वाले की प्लान होगा, जो उनका स्क्रिप्ट होगा, मैं तो उससे चलता हूँ। वो जहाँ ले जाएंगे जाऊंगा, जो कराएंगे करूंगा। तो बहुत मेरे पास कोई आपको पॉजिटिव मैसेज देने की क्षमता नहीं है। मैं तो टोटली सरेंडर हूँ। ये ऊपर वाले का एक प्लान है, वो प्लान के हम सब प्यादे हैं, वो जो खिलाते रहे वो गेम खेलते रहना है। और मैंने तो लास्ट के कुछ साल मेरे जीवन के ऐसे ही गुजारे हैं, और बाकी के जीवन भी ऐसे ही चलेगा। जो उनका मेरे लिए प्लान होगा मैं करते रहूँगा। बहुत खूब मयंक भाई, आपने तो एक ही लाइन में सबको बोल दिया भाई, सरेंडर एंड बी स्ट्रेस फ्री। तो इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं होगा। अब आपके लिए एक सवाल है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन जैसे आपने बोला ना, पूछे ना। अभी किसी ने लिखा है, हमारे यहाँ रमेश चंद्राना जी हैं, जो वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या वो बेटर है दूसरे पार्टी से, या वो भी उतनी करप्ट है? इट्स योर प्रिविलेज कि आप आंसर देना चाहें नहीं देना चाहें। नहीं आंसर, मैं तो एकदम कैंडिडेट ही हूँ। अभी मुझे आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी में जरा डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि जब उन्होंने 3 गुप्ता जी से पैसे लिए करोड़ों रुपए, और बाकी भी उनको सरकार गवर्नमेंट चलाने को पैसे, देखिए अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि कोई भी कितना भी बोल दे, बिना पैसे लिए सिस्टम चल नहीं सकती, पार्टी चल नहीं सकती। और खूब स्टोरी सुन रहा हूँ कि खूब पैसे बना रहे हैं सब लोग। तो कोई फर्क नहीं है। अभी इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन हारेंगे। जैसे मायावती की पार्टी है, मुलायम की पार्टी है, वैसे ये भी है। इज वन ऑफ द पार्टीज जो हम लोग लेके बैठे थे सोच कि देश को बदलना है, तो वो तो गया। अभी ये देश बदलने नहीं वाला है। एक गवर्नेंस सिस्टम शायद थोड़ा बेटर हो सके, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस हो सके। तो कोई इतना बुरा भी काम नहीं कर रहा है, उतना अच्छा भी नहीं कर रहा है, पर जो हम सोच लेके आए थे दैट इज ओवर। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इज ओवर। ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल। पावर के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
तो अब ये पावर का, हम लोग जब आए थे ना तब क्या सोचा था कि ग्रीन पीस पॉलिटिकल पार्टी थी कनाडा में, पहला चुनाव जब वो लड़ी ना तो उसको 8% वोट मिले थे, 8। अभी उसको 1/4% भी नहीं मिलता है, लेकिन उसका एजेंडा बाकी की पार्टीज ने ले लिया है। हम भी यही सोचे थे कि हमारा एजेंडा शुड बी पिक्ड अप बाय द कंट्री, लेकिन हम पावर के गेम में चले गए कि अभी जाके उसको एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन वो राइडिंग द टाइगर है, आप उतर भी नहीं सकते हो, आप चढ़ भी नहीं सकते हो। जी सर, एक सवाल आया है, बहुत एक्साइटेड हो गए हमारे रोटेरियंस, कईयों ने ये लिखा है, अब मेरे को पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि अगर जो आप प्रोजेक्ट किए हैं रोटरी के सपोर्ट से, अगर उसका डिटेल अगर आप भेजेंगे, श्रेय ने जवाब दिया है कि वो मुझे भेजेंगे। श्रेय, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संदीप केडिया जी को भेजिएगा, प्रोटोकॉल का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो नेचुरली सब जुड़ना चाहेंगे, शायद इंडिविजुअल लेवल पे, कोई क्लब लेवल पे। अल्टीमेटली जो है मकसद एक ही है कि हम सब देश के एक भागीदार बने। संदीप, मेरे यहाँ पर अभी कोई भी सवाल नहीं है, तो प्लीज टेक ओवर द माइक। Okay, if anyone has any question, you can post it, and we can still take in another 5 minutes if any question is there. Mayank bhai, hello. जी Mayank sir, I would like to ask you something. When you went to Parli in 2015, you chose Parli only because there was highest number of suicide in Marathwada, and that was in a worse condition, or was there any criteria to choose that place? No, like I told you, मैं थोड़ा सा ड्रिलिंग डाउन किया। वर्स्ट एरिया, हाईएस्ट सुसाइड इन इंडिया मराठवाड़ा, वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन मराठवाड़ा बीड, वर्स्ट तालुका इन बीड परली। तो 40% इरिगेटेड एरिया इंडिया का एवरेज है, परली का 1.72% था। तो इसलिए हमने एकदम कॉन्शियसली डिसाइड किया कि चल वर्स्ट जगह पे जाते हैं, और वहां पे बहुत क्रिमिनलिटी थी, गुंडागर्दी थी, खून खराबी था। बोला चल उधर ही चलते ना, करते हैं तो वजह से करते हैं। तो यानी मैंने अभी भी कहा, ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था, और किसने मुझे वहां भेजा। मैं गया था sitting in Mumbai house, you decided that you chose that area. Before that, you had never been to that area. मैंने कोई गांव नहीं देखा था बॉस लाइफ में। संदीप 2 मिनट। मयंक भाई, मेरे ऑफिस से मैसेज आ रहा है, मेरे एसोसिएट्स बोल रहे हैं कि हम वकील हैं, हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे देश की सेवा कर सकते हो। मैं जानता हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन उनका रिक्वेस्ट है कि आप कुछ जरूर उसके बारे में बोले। नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हमें थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए कि इसको लीगल तरीके से बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स है गवर्नेंस में। इसको हम पीआईएल कर सकते हैं, कहीं कहीं पे ओपनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक ये जो बताया था 153 सिग्नेचर्स, इधर ई गवर्नेंस आ जाए। मैं तो ये बिलीव करने लगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जगह टेक्नोलॉजी अगेंस्ट करप्शन करते तो ही सॉल्यूशन है। टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। आप लोगों को बदलने जाओ, उनका माइंड बदलने जाओ तो और 100 साल लग जाएंगे। तो कैसे ई टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर सकते हैं, ई गवर्नेंस, उसके ऊपर पीआईएल कर सकते हैं, इसको थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत है। तो मैं आई अप्रिशिएट, और बिल्कुल मेरे और भी एश्योरेंस देता हूँ, मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, मेरी ऑफिस से भी था साथ में, कभी भी कोई भी पीआईएल, इनफैक्ट वी आर डूइंग सम पीआईएल, हमने सीनियर सिटीजन एक्ट पे कर रखा है, सरकार प्रेशर में है। चाइल्ड राइट कमीशन हमने बैठाई, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एजेंडा, बिकॉज ऑर्डर से कंप्लायंसेस नहीं हुए। वी अश्योर यू कभी भी चाहिए। एंड संदीप केडिया इज ऑल्सो अ लॉयर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एंड ही आर्ग्यूज वेरी वेल इन कोर्ट। ठीक है सर, वंडरफुल। मयंक भाई, आपके लिए एक सवाल आया है हिरेन मेहता जी से। मयंक भाई, डिड यू एवर हैड फियर ऑफ फेलियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? लेकिन मैं सरेंडर आदमी हूँ, तो मेरे को फेलियर का कोई सवाल ही नहीं ना। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा ही नहीं है। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा होता तो मेरे को फेलियर और सक्सेस होता ना। वो करने वाला कोई और है, वही करेगा, जो करना है वो करेगा। मैं एक जोक बोलता हूँ, ये एक आदमी था, उसने किससे 5 लाख रुपया लिए थे, और दूसरे ने कहा सुबह 7 बजे तक मुझे पैसे वापस दे देना। तो उसके पास पैसे हुए नहीं है, रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने 1:30 बजे फिर उस दूसरे को फोन किया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है करके फोन रख दिया। फिर वो तो आराम से सो गया, वो दूसरा जग रहा था।
तो वैसे मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, अब उसका टेंशन है ना, सक्सेस करना फेल करना, मैं काहे को टेंशन लूं, मैं तो एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ। मैं सक्सेस जिन होगा लोगों को फेलियर सवाल होगा है, वो ऊपर वाले का। जिन लोगों को सवाल है, श्रेय ने मैसेज दिया है www.globalparley.org में सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ और सवाल हैं मयंक भाई, लोग जानना चाहते हैं कि हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसका मैं जवाब दे देता हूं। मैं श्रेय का नंबर सबसे शेयर कर लूंगा, श्रेय विल हेल्प यू। एक सवाल आया मिस्टर शंकर से, कैन वी डू मोर सच प्रोजेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद यू, आई एम रेफरिंग टू योर ऐप विद बीएमसी। इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। ये मेरा एक ट्रस्ट है, ग्लोबल विकास ट्रस्ट। इसमें हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, ATG है, सब कुछ है। एक तो ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जो मैंने आज डिस्क्राइब किया। दूसरा एक ऐसा है कि हमने एक टेक्नोलॉजी का थ्रू एक ऐप बनाया हुआ है। तो एक छोटा सा बोर्ड लेके वहां पे कितना रुपया खर्चा हुआ, कौन से कॉर्पोरेटर के पास कितना पैसा है, क्या क्या काम हुआ, क्या काम आप कराना चाहते हो अपने एरिया में, और पूरा लिस्ट ऑफ वर्क आ जाता है। उसको आप जैसे ओला और उबर को रेट करते हो, वैसे काम को रेट कर सकते हो आप, और कंप्लेन कर सकते हो, और एक छोटे छोटे एरिया स्पेसिफिक चैट ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ऐसा एक विलेपार्ला इरला अंधेरी में मैंने एक बनाया हुआ है ऐप, उसको माई सुपर वार्ड कहते हैं। तो ये माई सुपर वार्ड को हम स्केल अप कर सकते हैं पूरे मुंबई में, क्योंकि पीपल शुड नो कि उनका टैक्स कहाँ जा रहा है, क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितने पैसे हैं। बजट के अंदर तुम्हारा एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि अपने एरिया का क्या बजट है। तो ये ऐप बहुत जरूरी है और इसको यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि तुम्हारे जो कॉर्पोरेटर है वो इसमें इन्वॉल्व हो, उनको इन्वॉल्व करेंगे तो काम होगा। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कोई डेटा ही नहीं मिलेगा बीएमसी से। और बीएमसी और कॉर्पोरेटर दोनों की यही कोशिश रहती है कि ऐसा कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आवे। तो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू गेट योर कॉर्पोरेटर टू डू दिस। तो ये डेफिनेटली वी कैन डू मोर प्रोजेक्ट्स विद रोटरी। शंकर जी विल शेयर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है। हाँ सॉरी आप पब्लिक कीजिए मयंक भाई। हाँ, तो ये मेरा दूसरा वर्क है जो सिटी के अंदर मैं करता हूँ। तीसरा वर्क जरा सा अगर आप मेरे को 5-10 मिनट का टाइम दे तो मैं बात कर सकता हूँ। तो ऐसा है कि जब मैं चले गया गांव में तो यहाँ के अपने मित्र कहने लगे कि तुमने मुंबई भी क्यों छोड़ दिया, यहाँ भी हम लोग कुछ लड़ाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो बात तो ठीक थी, तो हमने स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये स्टडी से समझ में आया कि जितनी कंपनीज फॉर्मेशन हो रही है उससे ज्यादा ट्रस्ट फॉर्म हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द ट्रस्ट जो है वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, जिसके चलते उनका मिसयूज और अब्यूज होके पैसे ट्रांसफर हो सकते, घुमा सकते हैं। तो हमने 100 से ज्यादा RTI किया और ये स्टडी करना शुरू किया, और इसके 4 वर्टिकल बना दिए। एक तो जो ट्रस्ट हेल्थ के ऊपर काम करता है, एक ट्रस्ट जो एजुकेशन के ऊपर काम करता है, एक ट्रस्ट जो रिलीजियस ट्रस्ट होती है, और चौथा होता है जो ओपन स्पेसिस को लेके क्लब बना रहा है या उसको मिसयूज कर रहा है। तो उसमें अभी हमने फोकस किया हुआ है हेल्थ केयर के ऊपर। और हेल्थ केयर के ऊपर करने लगे जब स्टडी, और सिद्धार्थ तुमको ये शायद पता होगा, तो स्टडी करने लगे तो 74 हॉस्पिटल्स मुंबई के अंदर ऐसी है जिसने सरकार से पैसे लिए हैं, हेल्प लिया है। इनके चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको 1 रुपया मीटर में जमीन मिली है, 1 रुपया में एकड़ में जमीन मिली है, जिसका इंपोर्ट ड्यूटी का वेवर है, जिसके FSI जो है वो बढ़ा के दिया है, जो बिजली पानी में उसके हाफ रेट्स हैं, और इनकम टैक्स का बेनिफिट है। तो ये सारा पब्लिक एक्सचेकर से पैसे लेके ये सारी ट्रस्ट हैं। अगर हॉस्पिटल्स का आप मैं नाम लेना शुरू करूं तो मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी, जसलोक, हिंदुजा, नानावटी, लीलावती, अंबानी, ऐसी जितनी बड़ी हॉस्पिटल है ये सारे सरकार अपने पैसे से चल रही है। तो इनका क्या दायित्व है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द कंट्री, टू द पीपल। तो 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बेड है उसका 10% जो है ये फ्री में
उनको ट्रीटमेंट देना है, जिसमें दवाई भी आ गई, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, सारे खर्चे। जो सबसे गरीब है, जिसको 85,000 रुपीज पर ईयर का कम फैमिली इनकम हो, और 10% ऐसा है जो 50% कॉस्ट के ऊपर करना चाहिए। तो लकीली क्या हुआ कि एक चैरिटी कमिश्नर बहुत अच्छे आ गए थे, अभी तो ट्रांसफर हो गए, तो हमने उनको कह के वेबसाइट तैयार करी है charity.maharashtra.gov.in। उसमें एवरी हॉस्पिटल का डेली का रिपोर्ट आता है कितने बेड खाली है, और आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे आजकल में हम लोग पुश कर रहे हैं कि एवरेज 90% बेड खाली है। तो हम लोग सोचें कि जब सरकारी हॉस्पिटल में बेड की महीने दो महीने वेट करना पड़ता है, एक बेड को शेयर करना पड़ता है, इतनी तकलीफ है, और यहाँ पे हजारों बेड एवरी डे के हैं जिसके 90% एम्प्टी है। इसका कारण क्या हो सकता है? 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि इस देश में गरीबी ही नहीं है, लेकिन इस देश में बहुत चीज का शॉर्टफॉल हो सकता है, लेकिन गरीबी के शॉर्टफॉल अभी तो नहीं होगा फॉर मेनी ईयर्स। फिर दूसरा ये कारण हो सकता है कि लोगों को पता नहीं, तो हम लोग स्लम टू स्लम जाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भैया इस तरह का स्कीम है आपके लिए, यूज कीजिए। तीसरा ये है कि आप वहां के लोग जो है, इसको हिम्मत नहीं है ऐसी हॉस्पिटल में जाने की। यानी वो आप देखिए तो इटालियन मार्बल लगा हुआ है, बाहर 50 सिक्योरिटी है, कौन जा सकता है अंदर। तो हमने सरकार को कह के एक GR पास करवाया कि सारी हॉस्पिटल के बोर्ड पे लगाया जाए कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और उसके गेट के ऊपर यानी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे लगाया जाए कि कितने बेड खाली है। तो और तीसरा ये कारण हो सकता है कि जब जाओ तो वहां का सोशल वर्कर उसको भगा देता है। मैं आपको 2 स्टोरी बताता हूँ। हिंदुजा में जाना था, हिंदुजा में वो गया, एक आदमी बेचारे को 10-15 दिन तक तो भगाया, तो घंटे भर खड़ा किया, फिर लास्ट में वो पहुंचा तो पूछा तू कितना रुपया लाया है? तो बोला सर ये तो स्कीम फ्री वाली है, रुपया लाने की क्या बात है। बोल रहा है अगर पैसे नहीं है तो ऐसी हॉस्पिटल में आते क्यों। फिर मैंने ट्वीट करना शुरू किया, उसको बहुत बड़ा वायरल हो गया। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनको फोन गया और फिर उसने ट्रीट किया फ्री में। अभी चीकू वाली एक लेडी थी, वो मर गई 18 घंटे में हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का बिल बना दिया, और ऑपरेशन नहीं किया था, कुछ भी नहीं, नानावटी ने। उसके बेटे का फोन आया, हम क्या करें। तो मैंने बोला आप जाके पुलिस में कंप्लेन, वो बॉडी नहीं दे रहे थे, बोले 1.25 लाख रुपया दो तो बॉडी देंगे। तो मैंने बोला जाके किडनैपिंग का केस डाल दो हॉस्पिटल के ऊपर। तो उसने जाके किडनैपिंग का केस डाल दिया हॉस्पिटल पे। फिर वो हॉस्पिटल का फोन आया, बोले सर हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, आप बॉडी लेके जाओ। बोला वो 20,000 एडवांस दिया था, बोले वो भी हम वापस देते हैं। तो इस तरह से रोज झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है हॉस्पिटल्स के साथ। ये हॉस्पिटल जो है वो एक तरीके से मैं वल्चर ही समझता हूँ कि वो कोशिश करती है। और अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, एक नोटिफिकेशन आया था 30 तारीख को, जो हम लोग मिडिल क्लास में एक बीमारी बड़ी होती है तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, इतना महंगा हो गया है मेडिकल। तो अभी हमने एक सरकार के थ्रू एक नोटिफिकेशन करवाया है जो कैप कर रहा है, कोई भी इलाज है तो उसमें इतने से ऊपर पैसे नहीं ले सकते हैं। तो आप वो नोटिफिकेशन सब लोग जरूर पढ़े। लेकिन सिद्धार्थ मैं तुम्हारे ऊपर आ रहा हूँ, तो हॉस्पिटल्स का सरकार के ऊपर खूब प्रेशर आया और उसने थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर दिया है। आज आप पढ़ोगे या कल सुबह पेपर में पढ़ोगे कि 80% जो बीमारी है उसका एक कैपिंग है, 20% वो ज्यादा रेट ले सकते हैं। वो 100% था, लेकिन वो हॉस्पिटल्स ने प्रेशराइज किया है गवर्नमेंट को। तो ये सारे इस हिस्से में हम लोग लॉयर्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे 2006 का जो जजमेंट है कि आपको 10% फ्री देना है और ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर एक अशोक अग्रवाल करके है, वो जैसा रिजेक्ट किया कि वो सीधा हाई कोर्ट में चले जाते हैं और उसको कंटेम्प्ट में पिटीशन डाल देते हैं, और फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर वो चाबुक मारता है हॉस्पिटल्स को और उनको करना पड़ता है। अगर ऐसा एक मैकेनिज्म कर दिया कि हाई कोर्ट में एक आध लॉयर भी ऐसा हो जाए, जैसा कोई भी केस है कि सीधा जाके कंटेम्प्ट करे कि 2006 का जो केस है, अरे जो जजमेंट है उसका ये कंटेम्प्ट है, उन्होंने अलाउ नहीं किया करने के लिए,
तो ये बहुत बड़ा एक लॉयर्स का सेवा हो सकता है इसमें। और चौथा जो हमारा वर्टिकल है वो ये था कि मुंबई के अंदर कैसे पेड़ लगाए जाए। तो आरए का आपको पता है 2160 पेड़ कटे थे, तो हमने 5000 पेड़ लगाए हैं। ये कोविड आ गया है, लेकिन हम लोग 40 से 50 हजार पेड़ आरए के अंदर लगाएंगे। जो कट गया है उसका तो हम खर्च कर नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है प्लैनेट फ्यूचर, ये कोविड के समय पे रोज के 500 से 1000 लोगों को खाना देता है, माइग्रेंट्स को खाना दे रहा है। परली के अंदर हम लोग सुबह 400 शाम को 400 लोगों को खाना खिला रहे हैं और बहुत कुछ काम कर रहे हैं। स्लम्स में जा जाके खाना खिला रहे हैं। तो ये तो टेम्पररी मेजर है। मैं फाइनल एक चीज कह के फिर इसको स्टॉप करता हूँ कि लोगों की सेवा करने के 3 तरीके हैं। एक तो फिश देना यानी आज के दिन में बेचारे भूखे हैं उसको खाना खिलाना। दूसरा फिशिंग करना, उनको सिखाना, स्किल डेवलपमेंट करना वगैरह वगैरह करना। और तीसरा है कि ऐसा पॉन्ड बनाना जहां पे लोग आराम से फिश कर सके। तो सिस्टम रिफॉर्म्स कैसे करने। तो मेरा ध्यान ऐसा है कि हम कैसे वो तीसरा वाला करें कि लोग अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपने आप को बदलते जाए। जैसे पहले ग्राम सभा में कुछ जो 4-5 लोग होते थे वो सारे पैसे खा जाते थे। अब हमारे यहाँ ग्राम सभा में 100 लोग बैठते हैं, गांव के लेडीज बैठती है, बच्चे बैठते हैं, और 1 रुपया इधर का उधर नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने कंट्रोल ले लिया है। कलेक्टर के पास जाके हमारे लोग लड़ते हैं। रोड खराब बना तो रोड पे सब सो गए, पानी नहीं आ रहा था तो सब भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब हमने लोगों को लड़ना सिखा दिया है। उन्होंने हमको कहा सर आप बीच में मत आइए, हम लोग 100% टॉयलेट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको शुरू करना है कि लोग अपने लिए लड़े। अब हमारे जो विलेजेस है वहां लोग अपने लड़ रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ उनके लिए लड़ना नहीं है, आप उनको लड़ना सिखाना है। आप उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। प्रॉस्परस विलेजेस इस देश को नहीं बदलेंगे, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस देश को। मयंक भाई थैंक यू। सुना मैंने आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो आपने बताया हॉस्पिटल का। तो 5 रुपया एकड़ में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने काफी जमीन दे रखी थी सीनियर सिटीजन होम पे। आज तक जमीन पे कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने हमारे पिटिशन पे एक रोक लगा दी है। आप जो बोले उसके ऊपर मेरे यहाँ से ऑफिस से मेरे 4 जूनियर्स का मैसेज है कि मयंक भाई के साथ हम करना चाहेंगे। जरूर हम एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे और जब भी वो फोन करेंगे वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी अवेलेबल। तीसरी बात आपने बोला एम्पावरमेंट, जो मुझे समझ में आया। तो वहां पर हम जरूर रोटरी वाले भी करेंगे। मुझे यकीन है कि वो इस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे जहां हम पॉन्ड बना सके, लोगों को ट्रेन कर सके। और शायद जो हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट एंड संदीप केडिया वो विल समडे बी सून बिकम आरआई के हेड करे, तो हम ये बनाते हैं और वो हमें ये सब प्रेरणा देते रहे। इस बीच में मैं बिफोर आई हैंड ओवर टू संदीप केडिया जी, मोहन अग्रवाल जी ने हाथ रेस किया है। मोहन जी आप अपना सवाल पूछिए और उसके बाद में संदीप केडिया जी आप फॉर्मेलिटीज बाकी जो भी आप कर लीजिएगा प्लीज। मेरा ये पूछना था कि अगर हम लोग कोई विलेज लें तो उसमें बैंक जी हम लोगों को कैसे हेल्प करेंगे, और अगर वही गांव को जैसे इन्होंने वो किया है वैसे ही हम लोग आगे बढ़ें, तो ऐसा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? मोहन जी मैं ये समझता हूँ कि इसको सक्सेशन प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कितने साल चलेगा, मैं कितना चलूंगा। तो इसकी एक पूरी एक एसओपी हम तैयार कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक कोई अगर कर्नाटका से बनाना चाहे, कोई आप जैसे करना चाहो, तो आपको पूरा एसओपी हैंड ओवर कर दे और हमारी एक टीम मेंबर आपको फुल टाइम दे दें जिसको आप 24 आवर्स फोन करके उसका गाइडेंस ले सके कहाँ कहाँ पे अटके हुए हो। तो ये दोनों चीज करेंगे, लेकिन मैं तो अवेलेबल हूँ ही, कभी भी आप फोन कीजिए। मैं वेला आदमी हूँ, कुछ काम धंधा ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, तो फुल टाइम मैं यहीं बैठा हूँ। रियली बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने के इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि मैं बहुत फ्री रहता हूँ। तो आप कभी भी बोलिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो हम लोगों को कभी जरूरत पड़े तो आपसे मिलने की इच्छा हो तो मिल सकते हैं, बिल्कुल टाइम लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मोहन जी क्लैरिफाई कर देता हूँ, मयंक भाई को किसी ने कभी भी फोन किया है, मुझे याद नहीं है पिछले 2007 से आज तक किसी ने को मयंक भाई ने ना बोला। ये हो सकता है बिजी है, 10 मिनट बाद फोन कर ले, आपको आप मैसेज ड्रॉप कर दो, उनका फोन जरूर आएगा। दैट इज समथिंग आई कैन वाउच फॉर। सही, थैंक यू। ओके सिद्धार्थ,
Mayank sir, hello. Yeah. Mayank sir, Sandeep Kedia here. Now, what I understood from the entire discussion, कि आप खुद अकेले निकल पड़े, आप शहरी थे, गांव में गए, ऐसा एक गांव को चुना जो दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ था, वहां पर जाकर के आपने अपनी एक टीम बनाई और वहां के लोगों से उन्होंने खुद का भला किया, आपने सिर्फ उसे दिशा दिखाई, सबको आपने सबको हिम्मत दी और एक सपना दिखाया कि तुम सब खड़े हो सकते हो और खुद का भला खुद कर सकते हो। तो आपने जैसे कहा, आपने उनको कंधा दिया, एक दिशा दिखाई, किया सब उन्होंने खुद ने अपना, और आज आपने एक सिस्टम बना दिया, टीम बना दिया है। जो आपके अंदर में जो जज्बा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो आपने लड़ा था, वो लड़ाई भी आपने दिखाई। आपने जो अपने पहले प्रोफेशन में काम किया था वो भी आपने दिखाया। आपके जो भी पहचान थे, जो भी कॉर्पोरेट थे, उनसे आपने CSR फंड भी लाए, रोटरी ने भी आपकी मदद करी। ये सब चीजों को आपने, सब चीजों को एक एक जगह दिखाई, सही दिशा दिखाई, और ये दिशा दिखा के आई एम अमेज्ड। मैंने सरकार को भी साथ लिया, ये भी एक सरकार को भी आपने साथ लिया, लेकिन करप्शन कहीं नहीं है। जो आज हम लोगों को बहुत बुरा लगता है यहाँ करप्शन है और हम कुछ करते नहीं है, आपने करप्शन के ऊपर उठ करके सरकार को, कलेक्टर को पेड़ के नीचे बैठा करके आपने साइन करवा दी है सबसे, जहां पर कि हम ये सब सोच भी नहीं सकते हैं। और आज के ये डिस्कशन से कुछ बातें निकल के आई कि इंक्रीज इन लाइवलीहुड, इंक्रीज इन इनकम, आज उनके हाथ में ज्यादा पैसे आए, आपने उनको सिखाया इंटरक्रॉपिंग किसको बोलते हैं, और हॉर्टिकल्चर में जाओ, एग्रीकल्चर के बदले कहां पर इनकम ज्यादा आएगा, उससे ना कि आपने उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, बल्कि आपने देश के इकोनॉमी को भी आगे बढ़वाया और एक ग्लोबल इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाया। और उससे सिर्फ कृषि जीवी नहीं, बल्कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, MSME है, उनके लिए भी एक आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाई। जहां तक मराठवाड़ा का सवाल है, हम सबको पता है कि वहां पर पानी के टैंकर के ट्रेन जाया करते थे और वहां पर पानी नहीं हुआ करता था। 1.5 करोड़ लीटर वाटर, और उसके बाद ये पॉन्ड और नदियां और ये सब करके 222 करोड़ लीटर वाटर। इट्स ए ह्यूज unimaginable task which you have achieved, Mayank bhai. Salute to you, salute to your spirit, salute to your team and the people who have worked tirelessly with you. We all Rotarians and all, हम जो इंडिया के जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, आपके इस जज्बे को सल्यूट करते हैं। आज आपसे हम नहीं मिलते तो शायद हमारी जिंदगी में एक बहुत कुछ छूट जाता है। और बहुत अच्छा लगा मयंक भाई आपसे आज मिल करके और ये सब सुन करके, बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है। डेफिनेटली बहुत लोग आपके इस मुहिम को जोड़ना चाहेंगे, और आप बिल्कुल आखिरी पड़ाव में नहीं है। आपने की एक आशा की, आपने लोग जिएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने आपके ही एक साथी की बात सुनी और इंटरव्यू में पहली बार उनसे इतने समय उनसे सुना। मेरे को लगता है प्रधानमंत्री तक आपके ये काम बहुत लोग पहुंचाएंगे, और देश की जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल सर्कल है, वो भी एक दिन जागेगी और करप्शन से ऊपर उठ करके, और वो भी ये देश सेवा के काम करेंगे। और उसी दिन हमारे देश में, दुनिया में, हर घर में खुशहाली आएगी, दिवाली आएगी, दिए जलेंगे, और आपके दिखाए हुए इस रास्ते पे, इस मुहिम पे हम सब साथ चल पड़ेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मयंक भाई, आपने ये सारा काम आप कर रहे हैं, और सिर्फ काम करने के साथ में आपने ये सारी चीज हमारे साथ शेयर किया। हमें भी आपने प्रेरित किया कि हम भी हमारे जीवन में जो भी हो सके, थोड़ा भी हो सके, हम करें और इस मुहिम के साथ जुड़े। मैं सिर्फ आपके बारे में, आपके सोच को 2 लाइनों में ये कह करके बयां करना चाहूंगा कि डर आपको भी लगा होगा फासला देखकर, पर आप बढ़ते गए रास्ता देखकर, खुद ब आती गई आपकी मंजिल, आपका हौसला। तो हौसला हो, जज्बात हो, तो मंजिल भी दूर नहीं है। और आपके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके काम के लिए, आपके जज्बे के, और बहुत बहुत शुक्रिया। सल्यूट टू यू, टू योर स्पिरिट एंड योर वर्क। We are grateful to you, and we need more and more people like you. Thank you very much for joining. Thank you very much for giving your precious time.
and joining hands with us and your president to Rotary Mumbai. Looking forward to you and to many more people like you. Thank you very much, Mayank bhai. Thank you. Special thanks, Shrey, for coordinating and ensuring that our Rotary function went very well. Thank you, Shrey. Dil se shukriya. Thank you, Siddharth and Law Chambers of Siddharth Murarka. Thank you very much for being there always and doing all this. Thank you very much. Thank you. And thank you, audience, and my Rotary Club members and all others for joining us. Thanks a lot. Now we close the recording. Sandeep, do you want to proceed? Anything? No, the meeting is adjourned. And hello, Rotary announcements will be there. Regularly, we will keep announcing you, and we will keep doing many more programs like this. So please join us in large numbers and take advantage of all these things. And अब हम लोग लॉकडाउन में घर पे हैं, हमारे समय को हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है और इन तरह के महापुरुषों की बातें सुननी है हमें. एंड प्लीज एंजॉय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय योरसेल्फ. मीटिंग इज एडजॉर्न्ड.